Good morning, class. Today we are going to discuss about ionic equilibrium. Students, before going to what is ionic equilibrium, we must know some terms like what are strong and weak electrolyte. Okay, and for knowing them, we have to know that what electrolyte are. So, students, in the study of electrolytes, okay, firstly, on the basis of conduction, Faraday classified all the substances into two categories. So, very firstly, you will see that Faraday divided all the substance into two categories. One as electrolyte and the other as non electrolyte. Okay, as he has divided on the basis of conduction, so you can assume that electrolytes are those substances whose aqueous solution or molten state conduct electricity. Okay, electrolyte, basically you have to assume that electrolytes conduct electricity. Okay, in the, you can say, molten state or in aqueous solution. On the other hand, students, a compound whose aqueous solution or molten state does not conduct electricity are called non-electrolyte. So how we can understood this? Suppose that students, suppose we are taking any electrolyte. So basically you know that in molten state NaCl conducts electricity. Okay, or suppose you are taking a sugar solution, that is aqueous solution of sugar. So students, the aqueous solution of sugar does not conduct electricity, hence they are called as non-electrolyte. Whereas solutions of inorganic acids, bases and salts conduct electricity, hence they are called electrolyte. Student, this was the basis of Faraday in 1824. Now students, Arrhenius in 1880 explained that conductance by an electrolyte is due to presence of ions produced by the dissociation of the substance. So basically students, assume that we are saying electrolyte are those which conduct electricity. So Arrhenius given the concept that why this conductance have been made. So he said that the conductance is due to the presence of ions produced by the dissociation. ओके, कंडक्टेंस किसकी वजह से है? आयंस की वजह से है। और आयंस कैसे प्रोड्यूस हुए हैं? डिसोशिएशन की वजह से। ठीक है, आयंस का प्रोडक्शन कैसे हुआ है? ड्यू टू डिसोशिएशन। ये बताया आर्हेनियस से। तो यहाँ से हमें एक और टर्म समझना होगा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, जिसे कि हम इंडिकेट करते हैं अल्फा से. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ओके, सो स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझने के लिए आपको समझना है, पहली चीज़ हम इसे अल्फ़ा से इंडिकेट तो कर रहे हैं. इट इज़ बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन. इट इज़ number of moles dissociated upon total number of moles taken. Okay,
Students, to define this, basically the fraction of the total number of moles which dissociate into ions is called the degree of dissociation. इसे हम कभी कभी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी कहते हैं और अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं. स्टूडेंट्स, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात आई तो फराडे ने फर्दर डिवाइड किया इलेक्ट्रोलाइट्स को इनटू टू कैटेगरीज. नाउ इलेक्ट्रोलाइट्स are further divided into two categories. Okay, Faraday given the division. One is called as strong electrolyte and the other is called as weak electrolyte. Okay, students, अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, इन्हें डिफाइन करने की, so a strong electrolyte is defined as a substance which dissociates almost completely, मतलब ऐसे substance जो कि completely dissociate हो जाए ions में in aqueous solution, hence is a very good conductor of electricity. चूँकि इनका almost complete dissociation होता है, इस वजह से ये क्या होते हैं, good conductor होते हैं of electricity. For example, like NaOH, KOH, HCl, H2SO4, etc. Okay. Now students, इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, सो बेसिकली इन्हें हम कहते हैं कि दे आर द सब्सटेंस विच डिसोशिएट टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये थोड़े स्मॉल एक्सटेंट तक डिसोशिएट होते हैं. और चूंकि स्मॉल डिसोशिएशन हो रहा है, स्मॉल एक्सटेंट तक डिसोशिएशन हो रहा है, इसी वजह से इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है वो भी बहुत स्मॉल एक्सटेंट तक होता है. फॉर एग्जांपल, इनके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH, लाइक एसिटिक एसिड दैट इज CH3COH, एटसेट्रा. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम समझ सकते हैं व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम. तो स्टूडेंट्स, जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो वहाँ पे हमने देखा कि कंप्लीट डिसोशिएशन होना है. ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दैट HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक्वस सॉल्यूशन में H2O के साथ डिसोशिएट हो रहा है H3O+ और Cl- में, मतलब आयंस में ब्रेक डाउन हो रहा है. तो जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो आप एरो जो देखेंगे, स्ट्रेट एरो, सिंगल हेड दिखेगा आपको. ओके स्टूडेंट्स. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर यहीं पे हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं तो जब सिंगल एरो है दैट मीन्स वो रिएक्शन रिवर्स होगा ही नहीं, और जब रिवर्स नहीं हो रहा है तो हम उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं समझ सकते हैं. तो हमें किसकी बात करनी है, आयनिक इक्विलिब्रियम की. तो आयनिक इक्विलिब्रियम हम समझ पाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ. अब स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे, सपोज करिए हमने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एसिटिक एसिड. ये एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में थोड़े स्मॉल एक्सटेंट तक आयंस में ब्रेक डाउन होगा. तो आप देख पा रहे हैं एसिटेट आयन में और हाइड्रोनियम आयन में ये ब्रेक डाउन हुआ. ऐसे ही आप देख रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ब्रेक डाउन हुआ अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन में. लेकिन इनमें आप एरो जो देख पा रहे हैं वो क्या है, डबल हेडेड एरो है. ठीक है, मतलब हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे दिख रही है. तो जनरली स्टूडेंट्स, जो आयोनाइजेशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट को, सपोज करिए हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं जो AB इलेक्ट्रोलाइट है और ये एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक डाउन हो जा रहा है A+ में और B- में. ओके. एंड स्टूडेंट्स, जो यहाँ इक्विलिब्रियम अचीव हुआ उसे हम क्या कह देंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाते हैं तो हम देख पाएंगे कि हम एक कांस्टेंट लिख सकते हैं Ki, जो कि क्या होगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट विच विल बी इक्वल टू concentration of A plus concentration of B minus
कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, ठीक है। तो हमें एक कांस्टेंट मिला जो कि क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे समझना है कि डिफरेंस बिटवीन डिसोशिएशन एंड आयोनाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, जब कोई आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होता है वाटर में, जो आयंस होते हैं जो कि उसमें प्रेजेंट होते हैं उस सॉलिड कंपाउंड में, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोशिएशन। ऑन दी अदर हैंड स्टूडेंट, जब कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे कि HCl है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड इस कंपाउंड में है, विच डज नॉट कंटेन आयंस बट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन जब इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये स्प्लिट हो जाता है आयंस को प्रोड्यूस करने के लिए इन द सॉल्यूशन प्रोसेस। ओके, इसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। ओके, हाउएवर जनरली द टू टर्म्स आर यूज्ड विदाउट एनी डिफरेंस, जनरली इनको यूज़ किया जाता है बिना डिफरेंस के, लेकिन इनमें इसी एक स्मॉल पॉइंट का डिफरेंस है। So this is all about today's lecture. In our next lecture, we will be discussing about the ionization of weak electrolyte. That is, we are going to discuss about Ostwald's dilution law. Thank you, class.